तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने PYQs। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट डाउन मेजर डिफरेंसेस बिटवीन के मींस क्लस्टरिंग एंड हायरार्किकल क्लस्टरिंग। के मींस क्लस्टरिंग और हायरार्किकल क्लस्टरिंग जब सभी हमने पढ़ा है। के मींस क्लस्टरिंग इज अ पार्टीशन बेस्ड मेथड वेयर नंबर ऑफ क्लस्टर्स नीड टू बी स्पेसिफाइड बिफोरहैंड। ओके, तो नंबर ऑफ क्लस्टर्स हमें पहले बताने पड़ते हैं। इट randomly initializes k centroids and assigns each data point the nearest centroid, then iteratively updates the centroids till the convergence. It works on mean of the data points in the cluster. Okay, it is efficient for large data set but can be sensitive to the initial placement of centroids, potentially leading to different results on different runs. So it can produce different results on different runs depending upon the placement of centroids. Okay, इसका ये एक माइनस पॉइंट हो सकता है जिसे कह सकते हैं हम, और it is very hectic for a person to give K. Okay, when it is multidimensional data set, we cannot decide how many clusters we need to perform for proper clustering. Okay, so these are the negative points of k-means. While on the other hand, hierarchical clustering builds a tree-like structures from the cluster called dendrogram without requiring the number of clusters in advance. It can be either agglomerative or divisive, जो हमने दो टाइप्स पढ़े थे इसके. This method is more interpretable and produces consistent results, but it is computationally very expensive and less scalable to large data sets. अगर data sets में मान लीजिए thousands और lakhs of data आ रहा है तो वो सबको अलग अलग करना is very मुश्किल. ठीक है, it is very computationally expensive. Okay, then हम आ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चंस पे. State any two model combinations to scream up to improve accuracy of a classifier. Okay, तो two model combination. ओके, तो टू मॉडल कॉम्बिनेशन इसमें आता है हमारा एम्बेडेड लर्निंग. तो अब एम्बेडेड लर्निंग में भी हमारे पास था बैगिंग और बूस्टिंग, टू कॉमन मॉडल कॉम्बिनेशंस टू improve accuracy of a classifier. तो improve करने के लिए दिस टेक्निक्स involves training multiple models on different random subsets of data with replacement, then combining their predictions, usually majority of voting on average. It reduces the variance and helps to prevent overfitting. तो जब भी वेरिएंस रिड्यूस करना होगा वी कैन गो फॉर बैगिंग. ओके, ओवरफिटिंग प्रिवेंट करनी होगी बैगिंग. ओके, पॉपुलर एग्जांपल क्या है इसका, रैंडम फॉरेस्ट. बूस्टिंग, बूस्टिंग क्या होता है, ट्रेन्स मॉडल्स sequentially where each new model focuses on the errors made by the previous one. ओके, जो पीछे वाला एरर्स है उनको देखता रहेगा, सिक्वेंशली ट्रेन करेगा. द फाइनल प्रिडिक्शन इज वेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मॉडल्स. इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द बायस एंड वेरिएंस. बायस और वेरिएंस अगर ज्यादा है तो वी कैन गो फॉर बूस्टिंग. एग्जांपल्स क्या है इसके, एडा बूस्ट, ग्रेडियंट बूस्टिंग, एक्सजी बूस्ट. एक्सजी बूस्ट को याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ समवन आस्क्स अबाउट द एग्जांपल, एक्सजी बूस्ट इज द आंसर. ओके, हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. व्हाट डू यू मीन बाय fuzzy C-means clustering? Okay, fuzzy C-means clustering is a soft clustering algorithm where each data point can belong to more or one cluster with a degree of membership between 0 and 1. So इसमें एक particular data point दो या दो से ज़्यादा clusters में belong कर सकता है with the probability, जिसे हम कहते हैं membership functions, जो कि 0 और 1 के बीच में lie करता है. ये कौन सी है, ये soft clustering algorithm है. Unlike k-means where each point belongs to strictly to one cluster, FCM assigns a membership value to a point indicating how closely it is related to each cluster. Okay, algorithm minimizes the cost function and is weighted by these membership function and updates both the cluster centers and membership functions iteratively. तो जैसे हम के मीन में क्या करते थे, हम सिर्फ सेंट्रॉइड्स को क्या कहते हैं, हम सिर्फ सेंट्रॉइड्स को अपडेट करते रहते थे, वैसे ही हम सी मीन्स में सेंट्रॉइड्स को भी अपडेट करते रहते हैं, और सेंट्रॉइड्स की लोकेशन चेंज होने की वजह से मेंबरशिप फंक्शंस भी चेंज होते रहते हैं. इट इज वेरी यूजफुल इन केसेस वेयर क्लस्टर बाउंड्रीज आर नॉट डिफाइंड वेल. ओके, जब भी क्लस्टर बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं होंगी तब हम फजी सी मीन्स को यूज करेंगे. फिर आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएटिव रूल माइनिंग, एक्सप्लेन अ प्रायोरी एल्गोरिथम विद रियल लाइफ डेटा सेट. तो हमने ये अभी अभी पढ़ा है, एसोसिएटिव रूल माइनिंग इज अ डेटा माइनिंग टेक्निक टू डिस्कवर इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप्स, पैटर्न्स और एसोसिएशंस. ओके, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं एग्जांपल पे. इफ अ कस्टमर बाइज ब्रेड एंड बटर, दे आर likely to buy jam. This can be expressed as bread butter jam.
ARM measures like support, confidence, lift. ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं a priori algorithm पे. The a priori algorithm is a classic algorithm used for mining frequent item sets deriving association rules. तो ये association rules को derive करने में help करती है. ओके, स्टेप्स क्या होंगे? पहले तो मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड लेना है. पहले मिनिमम सपोर्ट से हम ट्रांजेक्शन्स कैलकुलेट कर लेते थे, जैसे हमने पीछे किया था. फिर जनरेट करना है कैंडिडेट आइटम सेट ऑफ साइज 1. साइज 1 मतलब हर एक आइटम का ट्रांजेक्शन्स लिखेंगे. उसके बाद हम फिल्टर करेंगे. उसके बाद लार्जर कैंडिडेट्स आइटम सेट, फिर हम दो दो को कंबाइन करेंगे, फिर उनको दोबारा करेंगे, फिर तीन तीन को करेंगे, ऐसे करते रहेंगे अंटिल नो मोर फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स आर फाउंड. ओके, जनरेट स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रूल्स. उसके बाद हम उससे स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रूल्स जनरेट करेंगे, उनका कॉन्फिडेंस कैलकुलेट करके. ठीक है, जिसका कॉन्फिडेंस एक पर्टिकुलर 75 से ऊपर जा रहा है, या फिर जो भी मेंशन्ड है हमारे पास कॉन्फिडेंस की वैल्यू उससे ज्यादा जा रहा है, तो वो उससे स्ट्रॉन्ग कहेंगे. ओके, तो हम ऐसे एक एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा ट्रांजैक्शन आईडी बना सकते हैं. उसमें बता सकते हैं कि ब्रेड बटर में हैव हाई सपोर्ट देन ब्रेड देन बटर. ओके, सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 4 फाउंडेशंस ऑफ मशीन लर्निंग का. और दिस रिवॉल्व्स अराउंड द टॉपिक reinforcement learning. So, introduction to reinforcement learning. The idea that we learn by interacting with our environment is probably the first thing to occur to us when we think about the nature of learning. So, जब भी हम nature of learning की बात करते हैं कि हम कैसे सीखें, किसी भी जगह पे कोई भी चीज़ कैसे सीखती है, तो सबसे पहले आता है कि हम अपने environment को notice करके सीखते हैं, अपने environment के साथ सीखते हैं. Okay, so when an infant plays, the waves its arms, look about it, it has no explicit teacher, but it does have a direct sensory motor connection to its environment. Exercising this connection produces a wealth of information about the cause and effect, about the consequences of the actions, and about what to do in order to achieve the goals. तो बेसिकली क्या करें, जब बच्चा छोटा होता है वो अपने हाथ पैर हिलाता है, वो देखता है आसपास, और फिर अपने एनवायरनमेंट को एक्सेस करता है. जैसे जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनको पता नहीं चलता कि वो किससे बात कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी मम्मी को पहचानते हैं, वो सिर्फ एक ही मम्मी मम्मी को देखते हैं और मम्मी की बात में मम्मी के पास चुप हो जाते हैं. दादा दादी किसी को नहीं पहचानते, पापा को भी नहीं पहचानते कई बार, जब छोटे होते हैं. ठीक है, बिल्कुल जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो धीरे धीरे करके इट स्टार्ट्स ऑब्जर्विंग पीपल कि भाई दीज पीपल आर माई नोन, इनको मैं जानता हूँ, इनके साथ मैं रह सकता हूँ. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा होता है 2-3 साल का, जब वो चलना सीख रहा होता है, वो देखता है कि भाई फायर है, उसको तो बड़ा अच्छा लगता है कि वाह पटाखे फूट रहे हैं. पर जब वो उसमें हाथ मारता है तो उसे पता चलता है कि भाई दिस हर्ट्स, ये चीज इस चीज से हमें मुझे दूर रहना है, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है. सो दीज आर ऑल थिंग्स. एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए मान लो उसे भूख लग रही है, पहले तो वो रोएगा रोएगा रोएगा, पर जब वो बड़ा हो जाएगा तो ये ट्रिक्स काम नहीं करेंगी, मम्मी को नहीं पता चलेगा कि वो रो रहा है, तो वो खुद ही जाकर कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करेगा. ठीक है, वो कुछ ना कुछ हिंट देने की कोशिश करेगा, या फिर खुद ही बॉटल निप्पल अपना पकड़ के, अब जो छोटा सा होता है नहीं जो अपने मुंह में रखते हैं, उसको बॉटल को पकड़ सकता है, कुछ भी वो हिंट देने की कोशिश करेगा, अपनी मम्मा से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा. सो इन ऑर्डर टू अचीव डिजायर्ड गोल्स, वो कुछ ना कुछ एक्शंस परफॉर्म करने की कोशिश करेगा अपने एनवायरनमेंट को देख के, उनमें जो उसमें जो लोग हैं, उसमें जो एजेंट्स हैं, उनको देख. ठीक है, अब हम आ जाते हैं री लर्निंग पे. So reinforcement learning is a machine learning training method that trains software to make certain desired actions. Reinforcement learning is based on rewarding desired behavior and punishing the undesired one. So reinforcement learning हमारी एक machine learning ट्रेनिंग मेथड है कि हम अपने सॉफ्टवेयर को कैसे ट्रेन करेंगे कि वो ऐसे ऐसे एक्शंस परफॉर्म करे. हम उसे ट्रेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड्स. ठीक है, जब भी वो कोई अच्छा काम करेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा, और जब भी वो कोई गलत काम करेगा हम उसे पनिश करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, जब हम छोटे थे, जब हम पूरा दिन भर खेलते रहते थे, पढ़ाई नहीं करते थे, हमें पनिशमेंट मिलती थी कि, और फिर हमें रियलाइज होता था कि अच्छा हाँ हमें पढ़ना भी है. ठीक है, और अगर हम कुछ अच्छा करते थे, हम कोई ट्रॉफी अचीव करते थे या कुछ भी, हम किसी रेस में जीतते थे, तो हमको मिलती थी हमें मिलते थे रिवॉर्ड्स, हमें मिलती थी एप्लॉज. ठीक है, तो उसे हमें क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं रिवॉर्ड्स मिलते थे हमें. तो डिजायर्ड बिहेवियर को रिवॉर्ड्स देते हैं, और जो अनडिजायर्ड बिहेवियर होता है उसे पनिश करते हैं. So this is reinforcement learning. Reinforcement learning is a machine learning approach where agent, what is agent? The software entity is trained to interpret the environment by performing actions and monitoring the results.
अब वो केवल एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, वो मॉनिटर भी करेगा रिजल्ट्स को, ठीक है। वो देखेगा भी कि अगर मैंने एक्शन परफॉर्म किया तो इसका रिजल्ट क्या आया। फॉर एवरी गुड एक्शन द एजेंट्स गेट पॉजिटिव फीडबैक एंड फॉर एवरी बैड एक्शन एजेंट गेट्स अ नेगेटिव फीडबैक। इट इज इंस्पायर्ड बाय हाउ एनिमल्स लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस मेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शंस। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने डायग्राम पे। तो ये हमारा डायग्राम है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो है, ये हमारा जो सॉफ्टवेयर एंटिटी है वो है। तो ये कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा, उसको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, मगर उसके एक्शन परफॉर्म करने से एनवायरनमेंट की स्टेट पे भी चेंज आएगा और वो स्टेट भी चेंज होगी। तो जो न्यू स्टेट आएगी वो भी उसे मिलेगी। ओके, सिर्फ कर देते हैं। अब हम आ गए हैं अपने, एक बार इसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो in particular above diagram the agent is represented into a particular state. The agent takes action in an environment to achieve a particular task. As a result of the performed task, the agent receives a feedback as a reward or a punishment. Okay, तो अब हम आ जाते हैं अपने की एलिमेंट्स ऑफ reinforcement learning पे। तो reinforcement learning revolves around the idea that the agent, the learner or the decision maker interacts with the environment to achieve a goal. The agent performs actions and receives feedback to optimize its decision making over time. तो इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? पहली चीज तो एजेंट, कि जो डिसीजन मेकर है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो एक्शंस परफॉर्म करेगा उसे हम कहते हैं एजेंट, ठीक है। फिर आ जाती है हमारी एनवायरनमेंट, द वर्ल्ड और द सिस्टम वेयर द एजेंट ऑपरेट्स। तो जो हमने जो इसका एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना रखा है, जो वर्ल्ड बना रखा है, जो सिस्टम बना रखा है, उसे हम कहेंगे एनवायरनमेंट। फिर आती है हमारे पास स्टेट, द सिचुएशन और द कंडीशन द एजेंट इज करेंटली इन, ये जिस सिचुएशन में एजेंट अभी है। फिर आ जाता है हमारे पास एक्शन, तो द पॉसिबल मूव्स और डिसीजंस दैट द एजेंट कैन मेक। Reward, the feedback or the result from the environment based on the action, agent's action, ठीक है। अब क्या, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक रूम का सेटअप, ठीक है। अब इस रूम में है एक छोटा सा बच्चा, तो ये बच्चा क्या हुआ हमारा, ये बच्चा हुआ हमारा एजेंट, और ये जो रूम है ये हुआ हमारा एनवायरनमेंट। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पे एक प्लेट रखी है जिसपे रखे हैं एप्पल्स, ठीक है। तो ये उस रूम की स्टेट है कि अभी इसमें एप्पल रखे हैं और इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है। अब बच्चा जो है वो है हंग्री, वो है भूखा, ठीक है। और उस अब उस बच्चे की स्टेट है हंग्री, ठीक है, वो बच्चे की स्टेट हंग्री है। फिर बच्चा करता है एक एक्शन परफॉर्म, वो रोता है रोता है रोता है, बट उसे कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। रोता रोता रहता है तो उसे भूख और लगने लग जाती है, उसको नेगेटिव में और इम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है, आंखें लाल हो गई। और वो बच्चे को रियलाइज होता है कि रोने से काम नहीं होगा। तो जो वो रोया और उसकी जो आंखें लाल हो गई, या बोलूं उसे कुछ भी नहीं मिला, तो ये है उसका फीडबैक, जो रिवॉर्ड है वो नेगेटिव में है, ठीक है। अब वो बच्चा क्या करता है, क्रॉल करना ट्राई करता है और पड़ा हुआ एप्पल खा लेता है। तो जब उसने अपना पड़ा हुआ एप्पल खा लिया, तो उसने एक्शन परफॉर्म किया कि उसने पड़ा हुआ वो क्रॉल किया, उसने खाया, उसने उठाया एप्पल, उसने खाया, और उसको रिवॉर्ड मिला कि उसकी भूख मिट गई, ठीक है। सो दिस इज वेरी मतलब मिनिमलिस्टिक सा एग्जाम्पल, बहुत बेसिक एग्जाम्पल। अब हम क्या करेंगे, कुछ आरएल की टर्म्स पढ़ेंगे। तो एक पॉलिसी होती है, अ स्ट्रैटेजी दैट एजेंट यूजेस टू डिटरमाइन द नेक्स्ट एक्शन बेस्ड ऑन द करेंट स्टेट, ठीक है। दूसरी चीज होती है रिवॉर्ड फंक्शन, अ फंक्शन दैट प्रोवाइड्स फीडबैक ऑन द एक्शंस टेकन गाइडिंग द एजेंट टुवर्ड्स इट्स गोल। तो अब वो क्या कर रहा है, पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी एक स्ट्रैटेजी होती है जो एजेंट यूज करता है टू डिटरमाइन नेक्स्ट एक्शन। तो जैसे बच्चे ने क्रॉल किया, ठीक है, तो बच्चे की पॉलिसी क्या थी, एप्पल उठा के खा लूं, ठीक है। तो एप्पल उठा के खा लूं वाज इट्स पॉलिसी, तो उसने उसके लिए पहले क्रॉल किया, उसके बाद उसने एप्पल उठाया फिर खाया, ठीक है। रिवॉर्ड फंक्शन क्या होता है, फंक्शन दैट प्रोवाइड्स फीडबैक ऑन द एक्शन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बच्चे की मदर ने ये सब ऑब्जर्व किया, तो बच्चे की मम्मी ने उसकी बहुत तारीफ करी, उसको बहुत प्यार करा, ठीक है। सो दिस इज रिवॉर्ड फंक्शन, कि मतलब कितना एक पर्टिकुलर एक्शन पे उसे कितना मतलब वो मिलना चाहिए, ठीक है। अगर 2 साल का बच्चे की जगह 4 साल का बच्चा होता तो उसको ये सब रिवॉर्ड मिलता नहीं, सिर्फ उसकी भूख मिट जाती, राइट। तो कितना रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ठीक है। वैल्यू फंक्शन is estimates the future cumulative rewards agent can receive from the given state, ठीक है।
अब जब वो इस स्टेट में आ चुका है कि उसकी भूख मिट गई है, तो अब यहाँ से वो क्या क्या कर सकता है जिससे उसे और रिवॉर्ड्स मिले। ठीक है, वो अब वो एस्टिमेट करता है कि क्या इस स्टेट में आने के बाद मेरे पास और भी प्रोबेबिलिटी है कि मैं रिवॉर्ड्स ले सकूं। ओके, फिर आ जाता है हमारा मॉडल एनवायरनमेंट, अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनवायरनमेंट दैट प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर स्टेट्स, रिवॉर्ड्स एंड एडिंग इन प्लानिंग। तो ये मॉडल ऑफ एनवायरनमेंट वही चीज है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये फ्यूचर स्टेट्स भी दिखा सकता है ना, कि मतलब एप्पल, जब उसने एप्पल खाए तो एप्पल तो गायब हो गए, तो एनवायरनमेंट की स्टेट पे क्या फर्क पड़ा, मॉडल पे क्या फर्क पड़ा कि एप्पल अब नहीं है। ठीक है, और बच्चे की लोकेशन भी चेंज हो गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अप्रोचेस टू आरएल। व्हाट आर द अप्रोचेस टू आरएल? तो जैसे हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग में, अनसुपरवाइज लर्निंग में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं, वैसे ही हमारे पास आरएल में भी बहुत सारी अप्रोचेस होती हैं। इसमें से पहली अप्रोच होती है वैल्यू बेस्ड मेथड्स। अब वैल्यू बेस्ड मेथड्स क्या होते हैं? ये फोकस करते हैं लर्निंग पे वैल्यू फंक्शन को। दिस फोकसेस ऑन लर्निंग अ वैल्यू फंक्शन एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड फ्रॉम अ स्टेट और a state action pair. The key idea, learn to evaluate how good is it to be in a certain state or to perform a certain action. तो इसमें वो क्या करता है, जो आर हमारा जो एजेंट होता है वो ट्राई करता है कि वो इवेलुएट कर ले पहले ही कि अगर मैं ये एक्शन परफॉर्म करूंगा तो मैं कैसी स्टेट में आ जाऊंगा, एक बेटर स्टेट में या फिर एक वर्स स्टेट में। क्या उस स्टेट में मेरे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी रिवॉर्ड्स लेने की या कम होंगी। तो वट वो पूरा टोटल कैलकुलेशन करता है, जो उसका कैलकुलेशन होता है वो पूरा बेस्ड होता है वैल्यू पर कि उसको कितना रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाता है क्यू लर्निंग और सारसा, स्टेट एक्शन रिवॉर्ड, स्टेट एक्शन। ओके, द पॉलिसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू फंक्शंस, चूज एक्शन विद द हाईएस्ट क्यू वैल्यू। ओके, जो पॉलिसी है वो डिराइव करते हैं हम वैल्यू फंक्शन से। जो भी हम अपना सोचते हैं कि मतलब अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, वो वैल्यू को ध्यान में लेके करते हैं कि अब आगे जाके मुझे इस पर्टिकुलर जगह से या एक्शन से कितनी वैल्यू रिसीव होगी। ओके, हम आ जाते हैं अब नीचे। सेकेंड मेथड है हमारे पास पॉलिसी बेस्ड मेथड। ठीक है, तो दीज डायरेक्टली लर्न फ्रॉम अ पॉलिसी, अ मैपिंग फ्रॉम स्टेट्स टू एक्शन विदाउट यूजिंग अ की वैल्यू फंक्शन। तो इसका आइडिया है ऑप्टिमाइज द पॉलिसी पैरामीटर्स डायरेक्टली टू मैक्सिमाइज एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड। अब यहाँ पे क्या होता है, हमको यहाँ पे ना एक पॉलिसी दी जाती है। पॉलिसी मतलब एक रोड मैप टाइप बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इतना मिलेगा। ओके, तो ये हमें ज्यादा रिवॉर्ड देगा या कम रिवॉर्ड देगा, समझ रहे हो आप। यहाँ पे हमें एक पहले से एक पॉलिसी मिलती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप जंगल में खो गए हैं, यहाँ पे आप अब आपके हाथ में एक मैप आ जाता है मैजिकली, एंड यू ट्राई टू फिगर आउट कि कहाँ जाकर। जंगल में बहुत सारी छोटी छोटी जगहें हैं, एक पॉन्ड है, एक हॉन्टेड हाउस टाइप का है, एक अबैंडन पोर्ट है, यहाँ पे छोटी सी बोट है। तो आप ध्यान से देखोगे कि मैं कहाँ जाऊंगा और कौन सी जगह मेरे लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल होगी। एक एप्पल का ऑर्कार्ड भी है और हाँ मतलब खेत भी है, जो भी है। ठीक है, जो भी है बट मतलब यू हैव द मैप। ठीक है, यू हैव द पॉलिसी, यू हैव कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स। ठीक है, स्टेट टू एक्शन, और इस स्टेट में पहुंचने के लिए क्या क्या एक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे आपको वो पता होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपना एक्टर क्रिटिक मेथड की। ठीक है, ये एक हाइब्रिड अप्रोच है। तो ये वैल्यू बेस्ड और पॉलिसी बेस्ड मेथड्स को क्या कर देती है, कंबाइन कर देती है। ठीक है, तो जो एक्टर होता है learns the policy। ठीक है, these combined value based and policy based methods, जो एक्टर होता है लर्न करता है पॉलिसी को, decides what action to take। और जो क्रिटिक होता है इवेलुएट करता है एक्शन को टेकन यूजिंग अ वैल्यू फंक्शन। ठीक है, अब जैसे हम कोई भी मूवी देखते हैं तो हम उसमें एक क्रिटिक होता है और वो बैठ के सारे पॉइंट्स नोट कर रहा होता है कि क्या क्या इसने सही किया और क्या क्या इसने खराब किया। फॉर एग्जाम्पल हमने देखी मूवी तमाशा, उसमें हमने देखी रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस। तो क्रिटिक ने बोला कि भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बट यहाँ पे आते आते मूवी का पेस बहुत स्लो हो गया, जो कि मतलब बहुत बोरिंग सी हो गई बीच में हल्की सी, और फिर उसने दोबारा एक बहुत अच्छा टर्न ले लिया और फिर बहुत अच्छी मतलब एंटरटेनिंग हो गई दोबारा। ओवरऑल अच्छी मूवी थी, मगर यहाँ पे उसने ऐसे पॉइंट्स निकालेगा। ठीक है, तो इवेलुएट, तो एक्टर एक पॉलिसी को याद करेगा, उसे देखेगा, उसे ध्यान में रखेगा अपनी वैल्यू बेस, अपने वैल्यू अप्रोचिंग वाले फंक्शन से कि सबसे ज्यादा वैल्यू मुझे कहाँ मिलेगा करके उसने कुछ ना कुछ एक्शन लेना है। तो एक्टर क्या करेगा, एक्शन लेगा, और क्रिटिक क्या करेगा, उस लिए हुए एक्शन को बताएगा, इवेलुएट करेगा वैल्यू फंक्शन के थ्रू कि भाई आपने ये अच्छा एक्शन लिया है बट इससे भी अच्छा हो सकता था अगर आप ये करते। ओके, तो इसका एग्जांपल है हमारे पास DDPG,
डीप डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी ग्रेडियंट। अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ पे, मॉडल बेस्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, दीज मेथड्स लर्न अ मॉडल दीज मेथड लर्न्स द मॉडल ऑफ एनवायरनमेंट। अब ये क्या करेगा, वो बोल रहा है कि भाई दो मेथड्स तुम्हारे पास ऐसे, तीन मेथड तुम्हारे पास ऐसे ही हो गए कि एक वैल्यू के पीछे भागते जाओ, एक पॉलिसी पकड़ा दी उसको याद कर लो, और एक दोनों को मिक्स कर दो। बट अब हमारे पास आ गया है मॉडल बेस्ड रिइंफोर्समेंट लर्निंग। अब ये क्या करता है, दिस मेथड लर्न्स द मॉडल ऑफ एनवायरनमेंट। अब ये एनवायरनमेंट को याद कर लेता है कि भाई एनवायरनमेंट कैसे बिहेव करता है। तो जैसे हम जब कोई साइकेट्रिस्ट होता है, वो क्या करता है, वो अपने पेशेंट को स्टडी करता है पूरा। तो इसी तरह हम अपने एनवायरनमेंट को पूरा स्टडी करते हैं कि एनवायरनमेंट कैसे बिहेव करता है, क्या करेंगे तो क्या होगा। द की आइडिया इज प्रिडिक्ट फ्यूचर स्टेट्स एंड रिवॉर्ड्स टू प्लान एक्शन। तो की आइडिया क्या है कि हम प्रिडिक्ट कर पाए फ्यूचर स्टेट्स को, कि भाई अभी मैंने ये कर दिया, अभी देखना है ये एनवायरनमेंट कैसे बिहेव करेगा, और रिवॉर्ड प्लान कर पाए, मतलब रिवॉर्ड्स टू प्लान एक्शन। ठीक है, अब मुझे पता चल जाएगा कि ये कैसे बिहेव करेगा, तो मैं अपने एक्शन उसी तरह प्लान कर सकती हूँ कि जिस तरह मुझे मैक्सिमम रिवॉर्ड्स मिले। ठीक है, इट इज इंक्लूड्स प्लानिंग प्लस लर्निंग। इसमें क्या होगा, प्लानिंग एंड लर्निंग। तो हमें कीवर्ड्स याद रखने हैं सबके। जैसे सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले किया था वैल्यू बेस्ड मेथड्स। तो इसमें मैंने क्या बोलता, वैल्यू फंक्शन, वैल्यू फंक्शन को हमेशा याद में रखना है। ठीक है, दूसरा हमने किया था पॉलिसी बेस्ड। इसमें पॉलिसी को याद रखना है कि पॉलिसी क्या है, मैपिंग है स्टेट टू एक्शन की। ठीक है, फिर हमने किया था हाइब्रिड वाला एक्टर क्रिटिक मेथड। तो एक्टर और क्रिटिक पता होना चाहिए हमको कि क्या क्या करते हैं और क्या क्या, व्हाट आर देयर फंक्शंस। ठीक है, और ये किसका किसका हाइब्रिड है, हमें ये भी पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि ये प्लानिंग और लर्निंग को करता है, ये अपने एनवायरनमेंट को ही स्टडी करता है। ये मॉडल ऑफ एनवायरनमेंट को ही मतलब देखता है कि ये कैसे बिहेव करता है। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, डायनाक्यू और वर्ड मॉडल्स। ठीक है, मोर सैम्पल एफिशिएंट बट कैन बी कॉम्प्लेक्स ड्यू टू मॉडल एक्यूरेटली। ठीक है, सैम्पल एफिशिएंट होता है बट कॉम्प्लेक्स हो सकता है। फिर आया था हमारे पास मॉडल फ्री री इन्फोर्समेंट लर्निंग। भाई अब पहले तो मॉडल पे गए, अब बोला मॉडल फ्री कर दो भाई, अब नहीं चाहिए मॉडल। दीज डू नॉट बिल्ड एनी मॉडल ऑफ एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट का मॉडल ही बिल्ड नहीं करते हैं, दे डायरेक्टली लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। अब इनको पहले ही युद्ध में छोड़ दिया जाता है कि जाओ देखो जो करना है करो और एक्सपीरियंस से याद करो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलर आर एल एल्गोरिदम्स लाइक क्यू लर्निंग, डी क्यू एन, पॉलिसी ग्रेडियंट फॉल हियर। तो बहुत सारी पॉपुलर आरएल एल्गोरिदम्स होती हैं। इसमें हमें ये याद रखना है कि इसमें हम कोई भी एनवायरनमेंट का मॉडल बना के नहीं देंगे, उसको डायरेक्ट पकड़ा देंगे, उसको एक्सपीरियंस से लर्न करने के लिए देंगे। ओके, हमने उसे ट्रेन ही नहीं किया, वो सीधा एक्सपीरियंस से लर्न करेगा। ठीक है, अब हम आ गए हैं अपने एप्लीकेशंस ऑफ री इन्फोर्समेंट लर्निंग इन रियल वर्ल्ड पे। तो रियल वर्ल्ड में हमारे पास भी एप्लीकेशंस ऑफ री इन्फोर्समेंट लर्निंग है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज होती है मार्केटिंग में, गेमिंग में। अब मार्केटिंग में कैसे यूज होती है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग ऑप्टिमाइज करती है डिजिटल मार्केटिंग को बाय इंप्रूविंग एड टारगेटिंग एंड रियल टाइम बाइडिंग। तो एड टारगेटिंग और रियल टाइम बाइडिंग का मतलब कि हम टारगेट कर सके कि भाई कौन कौन से लोग हमारी एड पे ज्यादा ध्यान देंगे, व्हाट इज आवर टारगेट ऑडियंस, रियल टाइम बाइडिंग। ओके, it helps in maximizing the return of interest, increase ad impressions and predict the customer behavior, making market campaigns more effective। क्या करेगा, एड के इम्प्रेशंस को इंक्रीज करने का ट्राई करेगा कि ओके, आई एम अ गर्ल एंड इट विल शो मी लिपस्टिक्स, लिप बाम्स एंड वट एवर द थिंग आई लाइक अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंस। एक लड़के को वो लिप बाम वगैरह सजेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, या वो मुझे PS5 सजेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं उस पर PS5 सर्च ही नहीं करूंगी, है ना। ओके, सो और उसको मेरी प्रीवियस हिस्ट्री से पहले ही पता चल जाएगा कि भाई शी लाइक्स दिस थिंग, सो आई विल सजेस्ट हर दिस थिंग एंड शी विल सर्टेनली बाय इट। और मुझे भी एक बारी को होगा कि यार ये ले लेती हूँ, कितना अच्छा लग रहा है, इस पे क्लिक कर देती हूँ, कितने का प्राइस है चेक कर लेती हूँ। तो ये एड इंप्रेशन इंक्रीज कर दूंगी मैं। ठीक है, कस्टमर का बिहेवियर प्रिडिक्ट, अगर मान लो कि मैं ले रही हूँ लिप ग्लॉस, तो मैं उसके साथ मस्कारा भी ले लूंगी। जैसे हमने पहले पढ़ा था ना अप्रायरी एल्गोरिदम में कि ये लेंगे तो इसके साथ ये ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो प्रिडिक्ट करना कस्टमर के बिहेवियर को। हो सकता है मैं मस्कारा ले रही हूँ, मस्कारा के साथ एक आईलाइनर भी ले लूँ, है ना। सो मेकिंग द मार्केटिंग कैंपेन्स मोर इफेक्टिव। ओके, फिर हम आ जाते हैं आरएल इन गेमिंग में। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग एनहांस करता है गेमिंग को बाय ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस एंड स्ट्रेटजी।
सो आरएल कंटिन्यूअसली इंप्रूव करता है बाय लर्निंग फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस, मेकिंग गेम स्मार्टर एंड मोर अडेप्टिव। तो पहले क्या करता है, it can be applied to various genres and enabling AI to master complex gaming scenarios। तो AI मास्टर करता है complex gaming scenarios को। अब उस मास्टर कर लेगा कॉम्प्लेक्स गेमिंग सिनेरियोज को, कि मतलब कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं, पहले रूल याद करेगा, फिर मास्टर करेगा। उसके बाद जो हमारे गेमर्स है उनके लिए एक नई नई मोर स्मार्टर एंड अडेप्टिव गेमिंग स्ट्रेटजीज को इन्वेंट करेगा, कि अब इसे ये चैलेंज दे सकते हैं, ये चैलेंज इनके लिए टफ होगा, इस गेम में अगर हम ये ऐड कर दे तो अच्छा होगा। ओके, तो गेमिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि कैरेक्टर की वॉइसेस भी होती हैं। तो कैरेक्टर की वॉइसेस को अगर हम इफ यू यूज अ वॉइस एक्टर इट विल बी वेरी कॉस्टली, सो वी कैन यूज एआई। रीइंफोर्समेंट लर्निंग बेसिकली हमारी कहाँ यूज होती है, जब हमें गेमिंग सिनेरियोज को और ज्यादा इंप्रूव करना होता है, कि ग्राफिक्स अच्छे कर दिए। अगर मान लीजिए थोड़ा सा नेट स्लो आ रहा है, तो गेमिंग परफॉर्मेंस पे इफेक्ट ना पड़े, तो कौन सी क्वालिटी डिग्रेड करनी है, थोड़ी सी साइड की ग्राफिक्स डिग्रेड कर दिए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट रीइंफोर्समेंट लर्निंग, कि अब कौन सा गेम में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो गेम को चैलेंजिंग बनाने के लिए कोई यहाँ से ऑब्स्टेकल डाल दिया, या कुछ भी ऐसा जो हमें चैलेंजिंग गेम्स प्रोवाइड करता है, हमारे लिए ज्यादा अच्छा और स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने आर एल इमेज प्रोसेसिंग में। सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग हमारी इमेज प्रोसेसिंग में भी बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, और ये एनहांस करती है इमेज प्रोसेसिंग को बाय ऑप्टिमाइजिंग द टास्क लाइक इमेज एनहांसमेंट, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। Deep neural networks built on RL principles help to improve image quality, conceal information, and support various computer vision applications। तो जो हम इमेज प्रोसेस करते हैं, ओके, इनफैक्ट जो इमेज प्रोसेस कर रहे हैं हम, जैसे मान ली थोड़ी सी ब्लर है, इसको थोड़ा सा और शार्प कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और इसमें जो भी लिखा है, ओके, कुछ एनएलपी में टेक्स्ट है, कुछ नॉर्मल लैंग्वेज इंग्लिश में टेक्स्ट है, तो उसको इनहेंस कर दिया कि भाई दिस इज द टेक्स्ट। ओके, सो ये डीप न्यूरल नेटवर्क्स में जब हम ट्रेन कर रहे होते हैं सीएनएन को, जब हमने न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर रहे होते हैं, ये उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, और इनफैक्ट जब हम कोई इमेज एडिट कर रहे होते हैं, जैसे हम एडिटर को बोलते हैं ना कि भाई रिमूव दिस गाय फ्रॉम द बैकग्राउंड प्लीज, आर एल लर्निंग हेल्प्स इन दैट। ओके, कि मतलब वापस से जो पीछे का बैकग्राउंड है वो सेम लगे एज कम्पेयर टू जो मतलब ऑब्स्टेकल था बीच में। ठीक है, अब मैं ऐसे बोलती हूँ कि भाई यहाँ पे मेरा हाथ मेरे चिन पे है, इस इमेज से मेरा हाथ मेरे चिन से हटाकर नीचे कर दो। दिस इज ऑल्सो री लर्निंग। ओके, तो जो भी काम एआई अपने आप करता है प्रोसेसिंग में, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, और इनमें एनहांसमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो दीज आर आरएल। ओके, अब आ जाते हैं आरएल इन मेडिकल डायग्नोसिस में। ठीक है, तो मेडिकल डायग्नोसिस में भी आरएल बहुत हेल्पफुल होता है। तो पहला पॉइंट क्या होता है, improved accuracy। RL can help healthcare professionals by making more accurate diagnosis by learning from large dataset and identifying patterns that might be missed by humans। There must be some patterns जो ह्यूमन मिस कर देते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि भाई व्हाट इज द चांस ऑफ अकरिंग, मतलब बहुत रेयर डिसीजेज होती हैं जो हम कैच नहीं कर पाते, जो ह्यूमन डॉक्टर्स कैच नहीं कर पाते। तो विद द हेल्प ऑफ आरएल, ठीक है, आरएल कैन आइडेंटिफाई दोज मिसिंग पैटर्न्स and work with the doctor simultaneously to treat humans। ठीक है, reduced costs by optimizing treatment pathways and resource allocations, RL can help to reduce healthcare costs। So RL can find a way to reduce the cost। ठीक है, so जो भी हम जनरली वे बताते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट कॉस्ट होती है, बहुत एडवांस्ड इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, बहुत एडवांस डिवाइसेस यूज होते हैं। ओके, सो उनको उनकी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए भी हम आरएल का यूज कर सकते हैं, कि वो हमें एक पाथवे जनरेट करके दे जो हमारे लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव हो और हमारे कॉस्ट को भी रिड्यूस कर दे। Okay, personalized medicine. RL can help create a personalized treatment plan that are tailored to individual with the needs of each patient। हर एक पेशेंट की अपनी एक हिस्ट्री होती है, कि उसे कैसी कैसी बीमारियां पास्ट में रही हैं, या फिर उसके जीन्स में क्या क्या है, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स रही हैं। ओके, सो उसके हिसाब से सबका अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, सबका एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट होता है। तो आरएल हेल्प कर सकता है उस चीज को टेलर करने में, कि मतलब डॉक्टर्स के लिए ये चीज करना इस थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि इंडिया में वैसे भी डॉक्टर्स बहुत कम है और पेशेंट्स बहुत ज्यादा है।
इनफैक्ट एज अ वर्ल्ड टोटल में हम ले तो डॉक्टर्स आर वेरी लेस rather than patients. ठीक है, सो पर्सनलाइज मेडिसिन देने के लिए आरएल कैन हेल्प विद द डॉक्टर, डॉक्टर के साथ हेल्प में आ सकता है ताकि हर एक पेशेंट को एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट मिले. ओके, सो एग्जांपल्स ऑफ आरएल मॉडल्स इन मेडिकल डायग्नोसिस. ठीक है, तो इसमें आ जाता है डीप क्यूएन, डीप क्यूरल नेटवर्क, डीप क्यू नेटवर्क यूज फॉर अ टास्क लाइक ऑप्टिमाइजिंग डायग्नोस्टिक वर्क फ्लोज, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान. ओके, तो इसमें थोड़ा सा एग्जांपल्स याद कर सकते हैं, तो डी क्यूएन याद कर सकते हैं, पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड याद कर सकते हैं, मॉडल बेस्ड आरएल जो अभी हमने ऊपर पढ़ा. ठीक है, एक बार देख लेते हैं. यूज फॉर टास्क लाइक कंट्रोलिंग रोबोटिक सर्जरी एंड एलोकेटिंग hospital resources, used for tasks like predicting patient outcomes and optimizing treatment regimens. अब आ जाते हैं एक बार नीचे, आरएल इन फ्रॉड डिटेक्शन. ओके, तो फ्रॉड डिटेक्शन में आरएल कैसे हेल्प करता है? So improve accuracy. RL algorithms can learn to identify subtle patterns and anomalies that traditional methods might miss. तो कुछ कुछ ऐसे पैटर्न्स देख सकता है वो, कुछ कुछ अनोमलीज निकाल सकता है जो ट्रेडिशनल मेथड्स मिस कर देते हैं, जो एसपीएम एंड और जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जो सुपरवाइज लर्निंग में है वो मिस कर देते हैं. ओके, reduce false positives. RL can be trained to minimize false positives, reducing the burden of fraud analysis. ओके, तो हम फॉल्स पॉजिटिव्स को टारगेट कर सकते हैं कि भाई फॉल्स पॉजिटिव्स तो आने ही नहीं चाहिए. वी कैन टारगेट थिंग्स. ओके, अडेप्टेबिलिटी टू इवॉल्विंग फॉल्ट पैटर्न्स. तो वो अडेप्टेबल टू, जैसे कोई भी चीज होती है वो इवॉल्व करती रहती है विद टाइम. जैसे पहले आते थे सुपर डिस्काउंट एंड ऑल. ठीक है, अब क्या आते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव वॉन दिस. फिर क्या आएंगे बाद में, दिस कीप्स ऑन इवॉल्विंग, इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन completed फॉर दिस, यू आर एलोकेटेड फॉर दिस, प्लीज पे दिस. ठीक है, ये सब पैटर्न्स इवॉल्व होते रहते हैं. जैसे मान लीजिए कोई, हमने अपने सिस्टम पे काफी टाइम पहले एक सॉफ्टवेयर डाला, तो कुछ हैकर्स ने उसे हैक करने के लिए बग्स भेजने शुरू किए. ठीक है, फिर हमने एक सिस्टम के लिए प्रोटेक्शन बना दी. अब उस प्रोटेक्शन की भी कुछ कुछ कमियां रही होंगी, तो हैकर्स ने इवॉल्व किया और उसकी कमी को देखकर और बग्स भेजने शुरू किए जो उसकी कमी को टारगेट करते हैं. फिर मैंने अब हैकर्स के बग्स देखे और उसके बाद एक और सिस्टम लेयर, प्रोटेक्शन लेयर डाली. तो दिस कीप्स ऑन इवॉल्विंग. और हम ऐसा नहीं कर सकते कि नई नई चीजों के लिए, नए नए इवॉल्विंग पैटर्न्स के लिए नया कोई मॉडल बनाते रहे. सो इट इज बेटर टू यूज आरएल, क्योंकि आरएल क्या करेगा, इट कैन अडेप्ट टू न्यू फ्रॉड टेक्निक्स. तो जैसे जैसे नई नई इवोल्यूशन होती रहेगी वैसे वैसे वो अपने आप को अडेप्ट करता रहेगा टू प्रिवेंट फ्रॉड्स, मेकिंग देम मोर रेजिलिएंट टू इमर्ज थ्रेट्स. ठीक है, अब हमारे पास क्या आते हैं, टाइप्स ऑफ आरएल एल्गोरिदम्स फॉर फ्रॉड डिटेक्शन. क्यू लर्निंग, डीप डीप क्यू नेटवर्क, पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड्स, एक्टर क्रिटिक मेथड. ये दोनों हमने ऊपर ही पढ़े हैं. ठीक है, क्यू लर्निंग वी विल सी आगे. ओके, so RL in email spam detection. Reinforcement learning enhances email spam detection by continuously learning and adapting to evolving spam tactics. तो जैसे हमने पढ़ा कि fraud tactics, वैसे ही email spam के tactics भी होते हैं. Okay, unlike traditional based rule-based methods or supervised learning approaches, RL spam filters dynamically to adjust strategies based on their feedback. ठीक है, तो ये डायनामिकली वर्क करता है. और फॉर एग्जाम्पल पहले आता था बड़ा बड़ा डिस्काउंट, तो सुपरवाइज लर्निंग क्या करता था, ये वर्ड्स हैं कंग्रेचुलेशन डिस्काउंट, तो इनको पकड़ लेते हैं, जहाँ पे ये आएगा वहां पे हम इसको ईमेल स्पैम डिटेक्शन कर देंगे कि भाई ये ईमेल स्पैम है. बट फिर अब अब वो उन वर्ड्स का यूज ही नहीं करते. ईमेल स्पैम डोंट यूज दोज वर्ड्स, क्योंकि अब उन्हें भी पता चल गया कि भाई इनका एल्गोरिदम तो ये फिल्टर आउट कर देगा, तो वैसे ही स्पैम में डाल देगा. तो आरएल क्या करता है, जो न्यू इवॉल्विंग हमारे जो न्यू इवॉल्विंग स्पैम्स है, जो नए नए स्पैम्स आ रहे हैं, उनको भी ब्लॉक करता है. बाय एनालाइजिंग यूजर इंटरेक्शन सच एज मार्केटिंग ईमेल्स और एज स्पैम और नॉट, द मॉडल रिफाइंस इट्स क्लासिफिकेशन, improving accuracy over time. This reduces false positives, enhances security, and ensures efficient filtering of unwanted emails. Okay. तो ये क्या करता है, बेसिकली जैसे मान लीजिए आई शॉप अ लॉट फ्रॉम Mintra. Okay, I shop a lot from Mintra. So I want the updates of Mintra. तो RL will recognize that कि मुझे मिंत्रा के अपडेट्स पे मेरा जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज्यादा है. आई यूज देम, आई सी देम, आई लुक अप टू देम एंड आई बाय देम. ओके, तो वो उसको स्पैम में नहीं डालेगा.
ओके, चैलेंजेस क्या है इसके? तो डेटा रिक्वायरमेंट्स, आरएल मॉडल्स रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा टू लर्न एफिशिएंटली, कंप्यूटेशनल कॉस्ट, ट्रेनिंग आरएल मॉडल्स कैन बी वेरी कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव, और interpretability. RL models are difficult to interpret, making it challenging to understand why they make certain decisions. तो क्या होता है कि RL मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमें बहुत सारा डेटा चाहिए, ठीक है, ये कंप्यूटेशनली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है, बहुत टाइम, बहुत मेमोरी, बहुत स्पेस, बहुत एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, RL मॉडल्स को इंटरप्रेट करना मुश्किल हो सकता है कि हम बता नहीं सकते यार कि इसने डिसीजन क्यों लिया है। लिया तो है, कुछ तो मैथमेटिक्स उसने बैकग्राउंड में लगाई है, मशीन ने लगाई है, बट हमने नहीं लगाई, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि हमने कैसे करी, और हम वी कैन नॉट टेल कि भाई बताओ तुमने क्यों लगाई है। वी कैन नॉट आस्क इट टू एक्सप्लेन मैथमेटिकली कि बताओ भाई ये क्यों लगाई है, और हम उसके मैथमेटिक्स को कंप्यूट भी नहीं कर पाएंगे। ओके, सो अब हम आ गए हैं अपने डी क्यूएन पे, ठीक है, ये हमारे पी वाई क्यूज ही हैं। तो पी वाई क्यूज में हमारे पास आ गया है डीप क्यू नेटवर्क्स। डीप, so this is an advanced version of Q learning that combines Q learning with deep learning. तो हमारी जो Q learning होती है हम उसको deep learning के साथ combine कर देते हैं. It uses deep neural networks (DNNs) to approximate the Q value functions instead of using a table to store Q values for each state action pair. Okay, this is particularly useful when dealing with large state spaces. जब बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी स्पेसेस के साथ हम यूज कर रहे होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट के साथ यूज कर रहे हैं, जैसे वीडियो गेम्स में ये बहुत काम आता है, ये मेडिकल डायग्नोसिस में बहुत काम आता है, जब हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट होता है तब ये बहुत काम आता है। तो हमने क्या किया, क्यू लर्निंग को मिला दिया है न्यूरल नेटवर्क के साथ। ओके, इजी टू लर्न, इसीलिए इसका नाम बन गया है डी क्यू एन, डीप क्यू नेटवर्क्स। ओके, अभी हमारे पास पी वाई क्यूज में दो तीन क्वेश्चन और हैं, एक बार उन्हें देख लेते हैं। What is reinforcement learning? We have already learned what is reinforcement learning. The key components of reinforcement learning हमने ये भी पढ़े हैं। जो हमारे की कंपोनेंट्स हैं वो है ये रहे, ठीक है, एजेंट, एनवायरनमेंट, स्टेट, एक्शन, रिवॉर्ड, इन सबको ध्यान से देख लेना, याद करना। डिसीजन मेकर, एजेंट होता है हमारा एनवायरनमेंट जिस वर्ल्ड में हम ऑपरेट कर रहे हैं, स्टेट जिस कंडीशन में हम हैं, एक्शन जो हमने पॉसिबल मूव परफॉर्म किया, रिवॉर्ड जो हमें फीडबैक मिला या जो रिजल्ट आया। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंपेयर एंड कंट्रास्ट सुपरवाइज अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद रियल लाइफ वर्ल्ड एग्जांपल्स। तो ये भी हम कर सकते हैं। ये सुपरवाइज लर्निंग, लेबल डेटा, अनसुपरवाइज लर्निंग, अनलेबल डेटा, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, वर्किंग विद एनवायरनमेंट। अनसुपरवाइज लर्निंग जब हमें डेट uses models like SVM and all. Unsupervised learning uses models like k-means, hierarchical clustering, etc. Reinforcement learning, actor critic method. Okay, no model method. बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, हमने बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स भी डिस्कस किए हैं। सुपरवाइज लर्निंग में आ जाता है ईमेल स्पैम डिटेक्शन, अनसुपरवाइज लर्निंग में आ जाता है हमारे पास क्लस्टरिंग आ जाती है हमारे पास, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास क्या आ जाता है, रिग्रेशन आ जाता है, क्लासिफिकेशन आ जाता है, और हमारे पास अनसुपरवाइज लर्निंग में आ जाता है एनोमली डिटेक्शन। ओके, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हमारे पास हमने जो अभी इतने सारे एग्जांपल्स डिस्कस किए, ओके, कि वो मेडिकल फील्ड में कहाँ यूज होता है और गेम्स में कहाँ यूज होता है। ओके, ईमेल स्पैम डिटेक्शन, वैसे हम ईमेल स्पैम डिटेक्शन में ये यूज करना प्रेफर नहीं करते क्योंकि ये कंप्यूटेशनली बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। फ्रॉड डिटेक्शन में यूज हो सकता है, मेडिकल डायग्नोसिस में यूज हो सकता है। हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे एक बच्चा होता है, उसको हम आंसर्स के साथ सिखाते हैं, बिना आंसर्स के साथ उसे एक्सप्लोर करने देते हैं। अब और इसमें क्या होता है, इसमें हम एनवायरनमेंट के साथ उसे इंटरेक्ट करने देते हैं, ठीक है। तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन पेपर, और हमारे पास यूनिट 3 का क्वेश्चन 1 है, कंपेयर के मींस क्लस्टरिंग विद हायरार्किकल क्लस्टरिंग। सो हम ये कर चुके हैं, हम ये पीवाई क्यूज में भी कर चुके हैं। ओके, फिर एक्सप्लेन बेसिक एलिमेंट्स ऑफ हिडन मार्कोव मॉडल। सो ये भी हमने अभी पढ़ा है थोड़े टाइम पहले कि हिडन मार्कोव मॉडल में 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। लिस्ट 2 एप्लीकेशन ऑफ एचएमएम। तो दो एप्लीकेशन जो होती हैं एचएमएम की, वो होती है, पहली होती है स्पीच रिकॉग्निशन, दूसरी होती है बायोइन्फॉर्मेटिक्स। क्योंकि हिडन मार्कोव मॉडल सीक्वेंस ऑफ डेटा पे वर्क करता है, तो जैसे हमारे जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जो हमारे लाइनें होती हैं, जो हमारी वर्ड्स होते हैं, वो सीक्वेंस में चलते हैं, वो एक कंटेक्स्ट पे डिपेंड करते हैं, जो कि डिपेंड करते हैं उससे पहले वाले वर्ड पे।
और उससे पहले वाले वर्ड पे। तो ये एक सीक्वेंस बनी होती है, एक कंटेक्स्ट होता है बातों को कहने का। क्योंकि जितने भी हमारे लैंग्वेज स्ट्रक्चर होते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, वो होता है सीक्वेंस बेस्ड। उसके बाद हम आ जाते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। तो एचएमएम को एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है डीएनए सीक्वेंस एनालिसिस में, ठीक है, जीन फाइंड करने में, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन में, और एनिमो एसिड की सीक्वेंस ऑब्जर्वेशन में। क्योंकि हमारा जो डीएनए है वो भी इन सीक्वेंस होता है, तो सीक्वेंस वाली चीजों को पैटर्न्स फाइंड करने के लिए हिडन मार्कोव मॉडल बहुत हेल्पफुल होते हैं। इट वर्क्स ऑन सीक्वेंस। ओके, तो हमने कर लिया है हमारा क्वेश्चन 6 पार्ट ए। सेकेंड पार्ट में हमारे पास यू यूज के मीन्स क्लस्टरिंग टू क्लस्टर द फॉलोइंग डेटा इनटू ग्रुप्स। तो ग्रुप्स में कैसे क्लस्टर करेंगे इनको? तो पहला ग्रुप है हमारे पास M1, दूसरा ग्रुप है हमारे पास M2, ठीक है, M1 की वैल्यू है 2, M2 की वैल्यू है 4। तो इसमें हमें बहुत सारी आइटरेशंस लगेंगी, इससे बेटर है कि हम इन दो को हटाकर कॉन्स्टेंटली अपने जो सेंट्रॉइड्स हैं वो अपडेट करते रहे। जैसे यहाँ पे आ गया 10, तो 10 आएगा हमारे 4 के पास। ओके, तो ये वन डायमेंशनल में है हमारे पास जो डेटा है। सो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, हम एक बेसिक सा सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया, दो जने हैं, 10 + 4 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका हमारे पास आंसर आ गया 14 डिवाइडेड बाय 2 इज 7। हमारी M2 की वैल्यू आ गई 7। अब हमने क्या किया, हमने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। अब हमने दोबारा देखा तो अब हमारे पास 12, ठीक है, तो 12 - 2 इज 10, 12 - 7 इज 5। तो ऑब्वियसली ये भी यहाँ पे आ गया। तो 7 + 5 डिवाइडेड बाय 2। तो 7 + 5 इज 12। ओ सॉरी, 7 + 12 डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि हमारा जो 12 है वो गया हमारा 7 के क्लस्टर में, और फिर हमें नया सेंट्रोइड अपडेट करना है। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 19/2, that is 9.5, राइट। हमने इसको इरेज कर देना है। अब हम आ गए हैं अपने 3 के पास। तो 3 और 9.5 में 3 जाएगा 2 के पास। ओके, अब यहाँ पे हमने कर देना है डिवाइड बाय 2। यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर 2.5, क्योंकि 3 + 2 इज 5, 5 डिवाइड बाय 2 2.5। ओके, उसके बाद है हमारे पास 20। सो 20 विल बी नियरर टू 9.5। 9.5 + 20 इज 29.5। इसे दोबारा डिवाइड बाय 2 कर देंगे हम। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 = 1.414। ओके, 2 1 = 2, 2 4 = 8। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 7 5। ओके, हमने अब 20 भी कर लिया है, बस 30 आ गया है। ओके, अब 14.75 + 30, क्योंकि 30 विल बी क्लोजर टू दिस, तो +30 डिवाइड बाय 2। इसमें हम इस कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन स्पीड अप हो जाए। तो 30 + 14.75 डिवाइड बाय 2। आंसर आ गया हमारे पास 22.345। अब इसको हम फटाफट फटाफट करते हैं।
11 11 22.5 के ज़्यादा पास होगा या नहीं? एक सेकेंड, हम इसे रब कर लेते हैं। सो अब हम फटाफट देखते हैं 11 माइनस 2.5 इज 8.5। यहाँ पे आ गया हमारे पास 8.5 और 22.345 माइनस 11 इज 11.345। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 11 यहाँ आ जाएगा और हमारा 11 अपडेट हो जाएगा 11 प्लस 2.5 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा हमारा नया 6.75। क्या करेंगे, हम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग को हटा देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट बचा है दैट इज 25। तो 25 विल बी नियरर टू दिस। हम क्या करेंगे 22.345 प्लस 25 डिवाइड बाय 2 और इसका आंसर हमारे पास आ गया 23.675। ओके, तो 6 7 रख लेते हैं, 2 5 रहने देते हैं। हम इसको इरेज कर देते हैं फटाफट। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे पास आ गए हैं, हमारे पास लास्ट में m1 m2 आ चुका है। अब हम दोबारा सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 2 इस इन दोनों में से सबसे ज़्यादा क्लोज किसके है। सो वेरी सिंपल, 2 m1 के क्लोज है। 4 किसके क्लोज है, m1 के क्लोज है, तो 4 भी यहीं आ गया। ओके, अब 10 किसके ज़्यादा क्लोज है, यहाँ पे m2 के साथ आ रहा है 13.6467 और यहाँ पे कम आएगा। ओके, 10 माइनस 6.75 इज 3। ठीक है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा 3.25। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, फटाफट फटाफट हम सबको करते रहेंगे। जैसे 3 यहाँ आ गया, हमने 12 छोड़ दिया, हम 12 देखते हैं 12 कहाँ आएगा। 12 माइनस 6.75 इज 5.25 और 23.67 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 11.65। ओके, सो हमारा पहले वाला आंसर ज़्यादा क्लोज था, तो 12 भी यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारे पास है 20, सो 20 तो ऑब्वियसली हमारा यहाँ आएगा। फिर हमारे पास 30 भी यहाँ आएगा। फिर हमारे पास है 25 भी यहाँ आएगा। अब बचा 11 देख लेते हैं हम कहाँ आएगा। सो हम देखते हैं 11 माइनस 6.75 इज 4.25। ओके, और 23 माइनस 6 माइनस 11 इज इक्वल टू, ठीक है, तो हमारा 11 भी यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारे बन जाएंगे दो क्लस्टर्स, क्लस्टर 1 क्लस्टर 2। अब हम आ जाते हैं अपने EM एल्गोरिदम पर और फजी सी मीन्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ए पार्ट एक्सप्लेन EM एल्गोरिदम एंड फजी सी मीन्स क्लस्टरिंग इन डिटेल। तो फजी सी मीन्स की क्लस्टरिंग हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि फजी सी मीन्स इज अ सॉफ्ट क्लस्टरिंग एल्गोरिदम जो कि के मीन्स की एक्सटेंशन है। फजी सी मीन्स में हमारा एक ऑब्जेक्ट दो या दो से ज्यादा क्लस्टर्स का पार्ट हो सकता है। ओके, दो या दो से ज्यादा क्लस्टर्स का पार्ट हो सकता है, एक प्रोबेबिलिटी असाइन होती है। हम देख लेते हैं व्हाट इज EM एल्गोरिदम। सो एन आइटरेटिव EM, एन आइटरेटिव मेथड मतलब जो अपडेट होता है और रिपीट करता है, स्टेप्स को अपडेट होकर रिपीट करता रहता है। ओके, आइटरेटिव मेथड इज मेथड टू एस्टिमेट पैरामीटर्स व्हेन डेटा इज मिसिंग वैल्यूज और हिडन वेरिएबल्स। तो जब डेटा में हिडन वेरिएबल्स या मिसिंग वैल्यूज होते हैं तब हम EM को यूज करते हैं। ओके, क्योंकि हमारा सिलेबस चेंज हुआ है, सो वी डोंट नीड टू नो थिंग्स
that are not in our syllabus in that much detail. Okay, so we just need to practice our previous question year paper. That's why we are doing it. ठीक है, हमें अपना प्रीवियस क्वेश्चन ईयर पेपर करना है. बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इस पेपर में जो हमारे सिलेबस में नहीं है इस ईयर, और वी जस्ट नीड टू नो देम ऑन अ डेप्थ कि हम उसे लिख सकें. अगर हमारे एग्जाम में ये बाई चांस आ जाता है बट सिलेबस में है नहीं, तो हम उसे लिख सकें, हम उसे अटेम्प्ट कर सकें, हम उसे छोड़ के ना आए. ओके, सो EM एल्गोरिथम इज वन ऑफ दैट. Iterative method to estimate parameters when data has missing values or hidden variables. तो पहला जाता है टू स्टेप, ई स्टेप. पहला स्टेप आता है ई स्टेप जो कि होता है गेस करना. ठीक है, एस्टिमेट हिडन या मिसिंग वैल्यू को हम क्या करेंगे, करंट पैरामीटर के थ्रू गेस करेंगे. करंट पैरामीटर्स को देखकर हम एक गेस मारेंगे कि दिस कैन बी द हिडन डेटा और द मिसिंग डेटा. फिर हम क्या करेंगे, एम करेंगे, अपडेट करेंगे. हमने अपनी वैल्यू तो डाली डाली, फिर हमने अपने पैरामीटर्स को भी अपडेट कर दिया ताकि वो फिट करे हमारे गेस्ड डेटा के साथ. ओके, हमने अपना गेस्ट डेटा, हमने अपना गेस्ट तो मारा ही मारा, बट हमने पैरामीटर्स को भी अपडेट कर दिया. इन शॉर्ट EM हेल्प्स अस टू फाइंड हिडन पैटर्न्स बाय गेसिंग एंड रिफाइनिंग. तो EM हमें हेल्प करता है फाइंड करने में हिडन पैटर्न्स को विद गेसिंग एंड रिफाइनिंग. तो पहले हमने क्या किया, हमारा पहला स्टेप था कि हमने गेस किया, एस्टिमेट किया हिडन डेटा को यूजिंग द करंट पैरामीटर्स. उसके बाद हमने एम स्टेप किया जिसमें हमने अपडेट किया पैरामीटर्स को टू बेस्ट फिट द गेस्ट डेटा. ओके, अब हम आ जाते हैं अपने ऊपर क्वेश्चन पे. एक्सप्लेन अ प्रायोरी एल्गोरिथम इन मशीन लर्निंग एंड एसोसिएशन एनालिसिस इन डिटेल. तो हमने ये भी बहुत अच्छे से डिटेल में किया है. एसोसिएशन एनालिसिस मार्केट बास्केट एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इट हेल्प्स टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स. ओके, प्रायोरी एल्गोरिथम सपोर्ट कैलकुलेट करना, कॉन्फिडेंस कैलकुलेट करना हमने बहुत अच्छे से सीखा है, तो हम इसे एक्सप्लेन आराम से कर सकते हैं. तो हमने यूनिट 3 कर लिया है अपना, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 डन. अब आ जाते हैं अपने यूनिट 4 पे. ओके, तो यूनिट 4 पे जाने से पहले हमने PYQs में एक क्वेश्चन देखा था. ओके, DQN का, डीप क्यू नेटवर्क्स का. इट इज एन एडवांस वर्जन ऑफ क्यू लर्निंग दैट कंबाइंस क्यू लर्निंग विद डीप लर्निंग. सो अभी हमने क्या किया था, हमने क्यू लर्निंग को डीप लर्निंग के साथ कंबाइन किया था, बट हमें पता ही नहीं है कि क्यू लर्निंग क्या होता है. तो अब हम देखेंगे व्हाट इज क्यू लर्निंग. हमारा क्यू लर्निंग हमारे सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल वी विल सी, क्योंकि हमारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आ रखा है और लास्ट ईयर हमारे सिलेबस में था. तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि वी नो, वी हैव द ओवरऑल आइडिया व्हाट इज क्यू फंक्शन एंड क्यू लर्निंग एल्गोरिथम. ठीक है, तो जो हमने स्टार्टिंग में एक वैल्यू फंक्शन पढ़ा था, बिल्कुल ऊपर जब हमने अप्रोचेस पढ़ी थी, तो हमने सबसे पहली अप्रोच जो पढ़ी थी वो थी वैल्यू बेस्ड मेथड्स. इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पहले वैल्यू फंक्शंस को देखते थे, उसके बाद पॉलिसी बनाते थे. ठीक है, हम हमेशा वैल्यूज को देखते थे, जबकि हम जो पॉलिसी फंक्शन था, पॉलिसी बेस्ड मेथड, इसमें हम पहले पॉलिसी देखते थे, उसके बाद वैल्यूज को कैलकुलेट करते थे. तो हम आ गए हैं अपने फर्स्ट टाइप पे. ठीक है, हम बात कर रहे हैं, हाँ, हम बात कर रहे हैं टू टाइप्स ऑफ वैल्यू फंक्शन की. तो जो अभी हमने वैल्यू फंक्शन पढ़ा जिसमें हम वैल्यू को देख के पॉलिसी बनाते थे, उसके हमारे पास टू टाइप्स होते हैं. पहला स्टेट वैल्यू फंक्शन. स्टेट वैल्यू फंक्शन किससे डिनोट करते हैं हम, VS से. हाउ गुड इज इट टू बी इन दिस स्टेट. तो ये स्टेट हमारे लिए कितनी ज्यादा फायदेमंद है, ये स्टेट में रहना हमारे लिए कितना ज्यादा सही है. इट टेल्स यू हाउ मच रिवॉर्ड यू कैन एक्सपेक्ट टू गेट इन फ्यूचर इफ यू स्टार्ट फ्रॉम अ स्टेट एंड फॉलो अ पर्टिकुलर पॉलिसी. तो पहले हम V कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम पॉलिसी पे जाएंगे, राइट. तो पॉलिसी तो हमेशा बाद में आएगी, पर पहले हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर स्टेट पे, इस पर्टिकुलर सिचुएशन से हमें कितना वैल्यू मिल सकता है, व्हाट इज द मैक्सिमम रिवॉर्ड वी कैन गेट. ओके, फिर है हमारे पास एक्शन वैल्यू फंक्शन. सो एक्शन वैल्यू फंक्शन क्या करता है, एक्शन वैल्यू फंक्शन हमसे पूछता है हाउ गुड इज इट टू टेक दिस स्टेट, दिस एक्शन इज इन दिस स्टेट. तो अब क्या कर रहा है, ये एक्शन को भी ले आया है. तो ये क्या कर रहा है, एक्शन और वैल्यू को कंबाइन कर रहा है एक पर्टिकुलर स्टेट में. It tells you how much reward you can expect to get in future if you take a specific action from a specific state. Then you keep playing smartly, follow the policy.
तो मतलब पॉलिसी तो फॉलो होगी पर वो बाद में होगी, पर पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि एक स्पेसिफिक एक्शन को इस पर्टिकुलर स्टेट में करने से हमें कितनी वैल्यू मिलती है, हमें कितने रिवॉर्ड मिलते हैं, हमारा फ्यूचर क्या है इसको इस एक्शन को करने के बाद। ठीक है, सो वाइंड अप करते हैं फटाफट। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा स्टेट वैल्यू फंक्शन, हमने पढ़ा एक्शन वैल्यू फंक्शन। स्टेट वैल्यू फंक्शन में क्या हो रहा था, वो वीएस कैलकुलेट कर रहा था, हाउ गुड इज दिस स्टेट, तो वो सिर्फ स्टेट की बात कर रहा है, वैल्यू और स्टेट की, कि स्टेट से कितनी वैल्यू मिल सकती है। और उसके बाद हम फॉलो करेंगे पॉलिसी। पॉलिसी हमेशा बाद में ही फॉलो होती है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट वैल्यू फंक्शन, राइट। जब हम वैल्यू फंक्शन की बात करेंगे तो हम पहले वैल्यू को देखेंगे और पॉलिसी को बाद में फॉलो करेंगे। और फिर हमने पढ़ा एक्शन वैल्यू फंक्शन के बारे में। सो एक्शन वैल्यू क्या करता है, ये एक्शन को भी देखता है और वैल्यू को भी देखता है एक गिवन स्टेट में। ठीक है, कि हम क्या एक्शन ले रहे हैं, और फिर उसके बाद फॉलो करेगा पॉलिसी को। अब हम आ जाते हैं अपनी क्यू लर्निंग पे। तो अभी हमने इतना कुछ पढ़ा, ये हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि जो हमारा क्यू लर्निंग है वो इसी पे बेस्ड है। तो क्यू लर्निंग क्या है, मॉडल फ्री वैल्यू बेस्ड इन्फोर्समेंट लर्निंग। तो जिस वैल्यू बेस्ड की हमने अभी 2 टाइप्स पढ़े, ये उसी के टाइप पे आधारित है, ये उसी की टाइप पे बेस है, तो ये वैल्यू बेस्ड है, बट ये मॉडल फ्री है। तो जब हमने ऊपर 2 टाइप पढ़े थे, मॉडल और मॉडल फ्री, उसमें से ये मॉडल फ्री की कैटेगरी में फॉलो करता है और ये वैल्यू बेस्ड फंक्शन की कैटेगरी में फॉलो करता है। ठीक है, सो दिस एल्गोरिथम अलाउज एन एजेंट टू लर्न द ऑप्टिमल एक्शन इन अ गिवन एनवायरनमेंट थ्रू ट्रायल एंड एरर। तो एक गिवन एनवायरनमेंट में थ्रू ट्रायल एंड एरर ये हेल्प करता है टू लर्न द ऑप्टिमल एक्शंस। तो ये सबसे ज्यादा ऑप्टिमल एक्शंस को ये एल्गोरिदम हेल्प करती है एजेंट को लर्न करने में कि हम सबसे ऑप्टिमल एक्शन क्या लें। ठीक है, तो अब आ जाता है हमारा कि इसमें क्यू फंक्शन क्या होता है। क्यू फंक्शन इन री लर्निंग क्यू एस ए। तो ये जो क्यू एस ए है हमने देखा है, कहाँ देखा है, हमने ये देखा है यहाँ पे। तो दिस इज क्यू एस ए एक्शन वैल्यू फंक्शन। सो जो हमारा एक्शन वैल्यू फंक्शन है ये एक्चुअली हमारा क्यू फंक्शन है। इट रिप्रेजेंट्स द एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिवॉर्ड्स ऑफ टेकिंग एन एक्शन इन अ स्टेट एस। तो ये क्या करता है, ये वैल्यू और एक्शन को एक पर्टिकुलर स्टेट में क्या करता है, इवेलुएट करता है, और फिर बाद में पॉलिसी फॉलो करता है। तो जो हमारा क्यू फंक्शन है वो वैल्यू बेस्ड लर्निंग का ही सेकेंड टाइप है। ओके, और क्यू लर्निंग इसको फॉलो करती है। ओके, अब हम देखते हैं कि क्यू लर्निंग का एक तरीके से फ्लो चार्ट। ठीक है, तो ये अगर आपको याद नहीं आ रहा कि क्या करना है तो ये फ्लो चार्ट बना के आ जाएंगे हम। सो क्यू लर्निंग एल्गोरिथम क्या करती है, इनिशियलाइज करती है क्यू टेबल को। तो ये क्यू टेबल बनाती है, उसके बाद एक एक्शन चूज करती है। ठीक है, फिर वो एक्शन परफॉर्म करती है, फिर उसके मेजर करती है रिवॉर्ड को कि इस एक्शन को परफॉर्म करने के बाद मुझे कितना रिवॉर्ड मिला। फिर अपडेट करती है अपनी क्यू टेबल को और दोबारा ये लूप चलाती है मल्टीपल आइट्रेशंस टिल द मॉडल अचीव्स टर्मिनेशन स्टेट। ओके, सो ये डायग्राम बनाने से हमें क्लैरिटी हो जाती है और हम एक तरीके से एग्जामिनर को बता सकते हैं कि वी नो अबाउट क्यू लर्निंग। वी नो कि क्यू लर्निंग में पहले क्यू टेबल इनिशियलाइज होगी, उसके बाद एक एक्शन चूज किया जाएगा, उसे परफॉर्म किया जाएगा, फिर उसका रिवॉर्ड मेजर किया जाएगा और फिर अपडेट कर देंगे हम अपनी क्यू टेबल को। और फिर ये चलेगा लूप, कब तक चलेगा, जब तक मॉडल टर्मिनेशन स्टेट में नहीं पहुंच जाता। ओके, और एक बारी इसके बाद पढ़ लेते हैं हम DQN को। तो डीप क्यू नेटवर्क्स आर एडवांस वर्जन ऑफ क्यू लर्निंग। तो क्यू लर्निंग अब हम समझ चुके हैं क्या होता है। तो ये क्यू लर्निंग और डीप लर्निंग को कंबाइन कर देता है, न्यूरल नेटवर्क्स को हेल्प करता न्यूरल नेटवर्क्स हेल्प करता है क्यू वैल्यू फंक्शन को, कि हम बार बार टेबल का यूज ना करके एक न्यूरल नेटवर्क का यूज करें। दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन डीलिंग विद लार्ज स्टेट स्पेसेस लाइक कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट्स जैसे वीडियो गेम्स और मेडिकल एडवांसमेंट्स जो हमने ऊपर पढ़ी थी। ठीक है, अब हमने क्यू बेस्ड लर्निंग भी पढ़ ली है, हमें समझ में आ गया है व्हाट इज क्यू बेस्ड लर्निंग, वैल्यू फंक्शन एंड ऑल। अब हम पढ़ रहे हैं अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्कस द बेलमैन इक्वेशन। ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है बट वी विल लर्न दिस एंड इट्स रोल इन मशीन लर्निंग। एक्सप्लेन द वैल्यू फंक्शन अप्रोक्सीमेशन। सो बेलमैन इक्वेशन इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन डायनामिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो दिस इज अ कंसेप्ट इन डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और ये क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स को
into very simpler recursive steps. Recursive steps क्या होते हैं? Recursion. रिकर्जन अपने आप एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता रहता है. It helps compute the optimal value of being in a given state considering immediate reward और future reward. तो ये क्या करता है? ये कंसिडर करता है immediate reward को कि अभी मुझे क्या मिला है और फ्यूचर में मुझे क्या मिलेगा. थोड़ी दूरदर्शिता होती है कि मतलब देखता है कि फ्यूचर में क्या मिल सकता है मुझे. Breaks down the complex problems into small steps. ठीक है. Foundation for RL algorithm guarantees optimal solution in Markov decision process. तो ये Markov decision process में क्या करता है? गारंटी करता है optimal decision को. अब एक बार इसका फॉर्मूला थोड़ा समझ लेते हैं. सो वीएस क्या होता है? वैल्यू ऑफ स्टेट. ठीक है. इसको एक बारी हम थोड़ा डिफरेंट कलर में करते हैं. तो वीएस क्या होता है? वैल्यू ऑफ स्टेट. मैक्स से मतलब एक ही वैल्यू हम रखेंगे मैक्स. आर एस ए इमीडिएट रिवॉर्ड फॉर एक्शन इन स्टेट. इमीडिएट रिवॉर्ड फॉर एक्शन इन पर्टिकुलर स्टेट एस. अब यहाँ पे आ जाता है प्लस गामा. गामा क्या होता है? डिस्काउंट फैक्टर. हाउ मच वी वैल्यू फ्यूचर रिवॉर्ड की हम फ्यूचर रिवॉर्ड को कितना ज्यादा अपनी नजरों में बढ़ा कर रखते हैं कि हाँ हमें बहुत जरूरी है या कम जरूरी है. ठीक है. सो गामा इज अ डिस्काउंट फैक्टर. देन वी हैव समेशन साइन. ओके. फिर हमारे पास आता है एस स्लैश मतलब फॉर ऑल स्टेट्स एस स्लैश प्रोबेबिलिटी ऑफ मूविंग टू स्टेट एस स्लैश आफ्टर टेकिंग एन एक्शन ए. ठीक है. सो द कि मतलब हम एक पर्टिकुलर एक्शन लेके एस स्लैश मतलब अपने डिजायर्ड स्टेट पे पहुंच पाएंगे या नहीं इसकी प्रोबेबिलिटी. ठीक है. और फिर लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं वी एस स्लैश से वैल्यू ऑफ स्टेट एस स्लैश क्योंकि वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये हमने पढ़ी हमारी बेलमैन इक्वेशन. ओके. डिस्कस बेलमैन इक्वेशन एंड इट्स रोल इन मशीन लर्निंग हो चुका है हमारा. राइट द नोट ऑन फॉलोइंग मार्कोव डिसीजन प्रोसेस. ओके. मार्कोव डिसीजन प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं. एंड एप्लीकेशंस ऑफ न्यूरल नेटवर्क ये भी हम पढ़ चुके हैं. एप्लीकेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. न्यूरल नेटवर्क किस चीज के लिए यूज होता है? इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है. ओके. जैसे CNN RNN CNN यूज होते हैं इमेज प्रोसेसिंग में. जो CNN होते हैं न्यूरल नेटवर्क्स वो यूज होते हैं इमेज प्रोसेसिंग में. जो RNN यूज होते हैं वो यूज होते हैं टेक्स्ट प्रोसेसिंग में. ओके. सो CNN यूज होता है इमेज प्रोसेसिंग में. RNN यूज होता है टेक्स्ट प्रोसेसिंग में. और न्यूरल नेटवर्क्स को हम ट्रेन कर सकते हैं. हाइब्रिड न्यूरल नेटवर्क्स को हम ट्रेन कर सकते हैं बहुत सारे अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स के साथ ताकि वो उसकी एक्यूरेसी इंप्रूव कर दें. ठीक है. सो न्यूरल नेटवर्क्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फिर हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डीप क्यू न्यूरल नेटवर्क्स. ये भी हमने ऊपर पढ़ा. ऑल्सो राइट द एप्लीकेशंस ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग. तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग की एप्लीकेशंस हम कर चुके हैं. ओके. तो अब हम आ गए हैं अपने सेकंड पेपर की तरफ. सेकंड पेपर में हमारे पास है यूनिट 3. यूनिट 3 में है बेस थ्योरम. तो बेस थ्योरम हमारे सिलेबस में है सेकंड यूनिट में. ओके. सेकंड यूनिट में है. और how would you define the number of clusters in a clustering algorithm? How Gaussian mixture model works using the expectation maximization algorithm? तो ये सब चीजें भी हमारे सिलेबस में नहीं है इस बार. ओके. बट हम पढ़ लेते हैं कि हाउ कैन यू डिफाइन द नंबर ऑफ क्लस्टर्स इन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम क्योंकि हमारे यूनिट 3 में है क्लस्टरिंग. तो अब हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो डिफाइनिंग द नंबर ऑफ क्लस्टर्स इन अ क्लस्टरिंग एल्गोरिथम पहली चीज तो आ जाता है इसमें एल्बो मेथड. दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास सिलुएट स्कोर. फिर आ जाता है हमारे पास गैप स्टैटिस्टिक्स. तो इसमें से हम सबसे ज्यादा क्रूशियली पढ़ेंगे एल्बो मेथड को. चूजिंग द राइट नंबर ऑफ क्लस्टर्स इज वेरी क्रूशियल फॉर इफेक्टिव क्लस्टरिंग. हियर आर कॉमन मेथड्स. सबसे पहले आ जाता है हमारा एल्बो मेथड. हम एल्बो मेथड को भी थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे. सो एल्बो मेथड हम ज्यादातर यूज करते हैं के मींस क्लस्टरिंग में. ठीक है. एल्बो मेथड इज अ ग्राफिकल मेथड फॉर फाइंडिंग ऑप्टिमल के वैल्यू इन के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम. ठीक है. तो हम के मींस में इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं. अब क्या करना होता है इसमें? द एल्बो मेथड शोज द विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स. ठीक है. तो विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स का हम एक वो बनाते हैं कि यहाँ पे वैल्यूज हैं और वाई एक्सिस. तो यहाँ पे हम एरर की एक्सेस रखते हैं. ठीक है. WSS एरर. हम यहाँ पे एरर की एक्सेस रखते हैं और यहाँ पे हम के की एक्सेस रखते हैं.
ठीक है, विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स एरर, value of x values on y axis corresponding to the different values of k on x axis। अब हम क्या करते हैं, ये हमने ग्राफ तो बना लिया, बट अब हम इसमें चूज कैसे करेंगे, हम इसमें चूज क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारी एल्बो कहाँ है। जैसे हम एल्बो रखते हैं, अपने हाथ को रखते हैं, तो हमारी जो एल्बो होती है वो एक एल्बो की साइड से एक ड्रास्टिक स्टीप के बाद नीचे स्लो हो जाती है। तो हमें वो स्टीप मेजर करना है, वो हमें देखना है कि स्लोप कहाँ खत्म हो रही है। तो अगर मैं बात करूं, अगर मेरा एल्बो मैं ऐसे रखूं तो यहाँ पे इसकी, अगर मैं अपना आर्म ऐसे रखूं तो इसकी एल्बो कहाँ आएगी, 4 पे, क्योंकि इतना सारा स्टीप होने के बाद ये यहाँ के बाद एक तरीके से हमारा स्लो हो गया है, हमारा जो स्टीप है वो स्लो हो गया है। तो हम लेंगे 4 को एज द बेस्ट वैल्यू। एक बार दोबारा देख लेते हैं हमने क्या किया। जो एल्बो होता है, हम पहले क्या करेंगे, हम अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे WSS एरर का और K वैल्यूज का। ओके, फिर हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज को प्लॉट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ पे हमारा जो, अगर हम इसे एज अ आर्म कंसिडर करें तो हमारा एल्बो कहाँ आएगा, तो हमारा एल्बो यहाँ 4 पे आएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ 4 पे हो रहा है ये कि हमारी जो स्टीप वैल्यूज थी, क्योंकि देखो यहाँ पे इतना स्टीप ग्राफ चल रहा है, उसके बाद ये थोड़ा कम स्टीप हो गया है। तो हमें ये ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो हमको डिफ्रेंसिएशन दे सके, बिल्कुल स्टीप में और कम स्टीप में। ठीक है, सो दिस इज आवर ऑप्टिमल वैल्यू इन दिस के मीन्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज द कंफ्यूजन मैट्रिक्स, व्हाई डू यू नीड इट, डिफाइन प्रिसीजन, रिकॉल F1 स्कोर। तो ये सब भी हम सेकेंड यूनिट में कर चुके हैं। मॉडल एक्यूरेसी और मॉडल परफॉर्मेंस, विच विल यू प्रेफर एंड व्हाई। दिस इज ऑल सेकेंड यूनिट, दिस इज नॉट थर्ड यूनिट, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है। That's why this problem is coming. List the most popular distribution curves along with the scenarios where will you use them in algorithm. तो हम ये कर लेते हैं। So top 5 distribution curves। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, क्योंकि हमने ये चीज अपने लास्ट ईयर लीनियर प्रोबेबिलिटी में पढ़ी थी। नॉर्मल, गॉसियन, जिसे हम कहते हैं बेल कर्व। ठीक है, तो जब ये हाइट, टेस्ट स्कोर्स, जब कोई कंटिन्यूअस चीज होती है ये उसमें यूज होता है। ठीक है, क्योंकि हाइट तो कंटिन्यूस होती है कि किसी की भी कुछ भी हो सकती है एक पर्टिकुलर रेंज में। हाइट किसी की भी कुछ भी हो सकती है जब हम पॉपुलेशन वगैरह की बात करते हैं, जब हम बहुत बड़ी बड़ी चीजों की बात करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है बाइनोमियल। ठीक है, इसका शेप क्या होता है, डिस्क्रीट पीक्स, या तो वन या तो यस या नो सर्वे, जिसमें हमारे पास दो आउटकम्स होते हैं। जैसे कॉइन फ्लिप करते हैं हमारे पास, तो हमारे पास होता है टेल्स एंड हेड्स। ठीक है, यस या नो। पॉइजन, ठीक है, तो इसकी शेप होती है राइट स्क्यूड। और ये रेयर इवेंट्स में होता है, जैसे ट्रैफिक इंसिडेंट, ये बहुत ही रेयर इंसिडेंट्स होते हैं, ये उसके डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है। ये होता है, इसकी शेप होती है राइट स्क्यूड। जो रेयर इंसिडेंट मतलब जैसे किसी फैक्ट्री में आग लग जाना, अर्थक्वेक आ जाना, ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाना, तो ये बहुत रेयर इवेंट्स हैं और इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो जिन चीजों की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है उसमें हम यूज करते हैं हम पॉइसंस का। एक्सपोनेंशियल, वी नो व्हाट इज एक्सपोनेंशियल। रैपिड डीके में यूज होता है, शेप इसकी रैपिड डीके होती है। एग्जांपल क्या होता है, जब वेटिंग टाइम्स होते हैं, ओके, जैसे बस अराइवल एक्सेट्रा। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म फ्लैट लाइन, इसकी शेप क्या होती है, फ्लैट लाइन। एग्जांपल क्या है, डाइस रोल, लॉटरी नंबर्स। ठीक है, जिनकी प्रोबेबिलिटी यूनिफॉर्म होती है, जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत यूनिफॉर्म होती है। डाइस रोल, कोई भी डाइस की जो हर एक फेस की आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6। ठीक है, दिस इज अ फेयर डाइस, गिवन दैट द डाइस इज फेयर, तो यूनिफॉर्म। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने list the advantages and limitations of temporal difference learning method. So temporal difference learning method, simple explanation है, reinforcement learning method that learns by combining actual rewards and estimated future rewards. तो टेम्पोरल डिफरेंस भी क्या करता है, एक्चुअल रिवॉर्ड्स और एस्टिमेटेड फ्यूचर रिवॉर्ड्स को कंबाइन करके ही लर्न करता है। एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस है कि ऑनलाइन अपडेट्स हर स्टेप के बाद लर्न करता है, मॉडल फ्री है, विदाउट एनवायरमेंट के भी विदाउट एनवायरमेंट रूल्स के वर्क करता है, हैंडल करता है पार्शियल डेटा को, लर्न फ्रॉम इनकम्प्लीट एपिसोड्स, लो वेरिएंस, स्मूदर होता है, स्केलेबल होता है। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसकी लिमिटेशंस है कि
बायस यूजेस एस्टिमेट्स नॉट ट्रू फ्यूचर रिवॉर्ड्स, एक एस्टिमेट यूज करता है। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, सेंसिटिव होता है लर्निंग रेट को एंड डिस्काउंट फैक्टर को, बहुत सेंसिटिव होता है, मतलब लर्निंग रेट थोड़ा सा आगे पीछे हुआ तो बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आ सकते हैं। नो ऑप्टिमल गारंटी, गारंटी नहीं है कि ऑप्टिमल होगा। स्पार्स रिवॉर्ड्स, लर्न स्लोली इफ द रिवॉर्ड्स आर रेयर। ओवर एस्टिमेशन, क्यू लर्निंग कैन ओवर वैल्यू एक्शंस। ठीक है, तो अब हम कर चुके हैं अपना टेम्पोरल डिफरेंस लर्निंग मेथड को भी थोड़ा थोड़ा समझने की जरूरत है क्योंकि हमारे पास इसमें ज्यादा नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेन मार्कओव डिसीजन प्रोसेस ये हम कर चुके हैं, यूज ऑफ बेलमैन इक्वेशंस भी कर चुके हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएटिव रूल माइनिंग, ARM। एक्सप्लेन अ प्रायरी एल्गोरिथम विद रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ सम डेटा सेट, ये भी हम कर चुके हैं, अ प्रायरी एल्गोरिथम एंड रियल लाइफ डेटा सेट। डेटा सेट में हम वही डाल सकते हैं जो हमने डाला था ब्रेड बटर मिल्क का। ओके हम छोटा सा एक डेटा सेट बना सकते हैं उसका, ट्रांजेक्शन एंड ऑल का। हाउ डू यू सिलेक्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स व्हाइल वर्किंग ऑन अ डेटा सेट, ये भी हम कर चुके हैं। फीचर सिलेक्शन, फीचर एक्सट्रैक्शन, व्हाट इज लॉग लाइक्लीहुड, तो एक बार देख लेते हैं व्हाट इज लॉग लाइक्लीहुड। लॉग लाइक्लीहुड मेजर्स हाउ वेल अ स्टैटिस्टिकल मॉडल फिट्स द ऑब्जर्व डेटा। ठीक है, तो ये मेजर करता है कि स्टैटिस्टिकल मॉडल कितना ज्यादा फिट कर रहा है ऑब्जर्व डेटा को। इट इज द लॉगरिथम ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन। ठीक है, ये लॉग कर लाइक्लीहुड फंक्शन के आगे एक लॉग लगा दो जब तुम। ठीक है, लाइक्लीहुड फंक्शन इज अ फंक्शन जिसके आगे तुम लॉग लगा दो तो तुम्हारा लॉग लाइक्लीहुड मेजर बन जाता है। ठीक है, विच कैलकुलेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ सीइंग डेटा गिवन द मॉडल्स पैरामीटर्स। ओके, evaluating a logistic regression model involves accessing of its performance। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि how would we evaluate, okay, how would we evaluate a particular if a particular model is good or bad। तो how will we evaluate if a particular model is good and bad, पहली चीज तो confusion matrix, accuracy, precision, recall, F1 score। ठीक है, सो इन सब के थ्रू कर सकते हैं पहली चीज, फर्स्ट पॉइंट कि वही सब चीजें कि हमारी एक्यूरेसी कितनी है, हमारा प्रिसीजन कितना है, रिकॉल कितना है, F1 स्कोर कितना है, ट्रू पॉजिटिव कितने हैं, फॉल्स पॉजिटिव कितने हैं। ठीक है, सो दिस इज कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड डिराइव मैट्रिक्स। दूसरी चीज आती है हमारे पास आरओसी कर्व एंड एयूसी कर्व। आरओसी कर्व क्या होता है, प्लॉट्स द ट्रू पॉजिटिव रेट रिकॉल वर्सेस फॉल्स पॉजिटिव रेट। ठीक है, एट डिफरेंट थ्रेशोल्ड्स। और एओसी क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो एओसी 1 क्या होता है, परफेक्ट क्लासिफायर। और इसमें एओसी की वैल्यू है, एओसी अगर वैल्यू 1 है तो परफेक्ट क्लासिफायर है, और एओसी की वैल्यू अगर 0.5 है तो ये रैंडमली गेस कर रहा है। यूज केस क्या होता है इसका, मॉडल्स को कंपेयर करने में अराउंड थ्रेशोल्ड्स। तो इतना ज्यादा डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है, बट वी कैन रिमेम्बर कि जो आरओसी कर्व होता है वो ट्रू पॉजिटिव रेट को, जो कि रिकॉल होता है हमारा रिकॉल को प्लॉट करता है फॉल्स पॉजिटिव रेट के साथ। ठीक है, एट डिफरेंट थ्रेशोल्ड्स। आरओसी कर्व ये करता है। और एरिया अंडर कर्व क्या करता है, एरिया अंडर कर्व की कुछ वैल्यूज हैं कि एरिया अंडर कर्व अगर 1 हो तो परफेक्ट क्लासिफायर होता है, और एरिया अंडर कर्व अगर 0.5 है तो ये रैंडमली गेस कर रहा है। ओके, तो अब हमने सॉल्व कर लिया है हमारी दो क्वेश्चन पेपर, एंड आई होप इफ यू कीप ऑन री रीडिंग दीज थिंग्स। ओके, जो भी हमारे हमने आज डिस्कस किया, अगर हम कोई भी चीज अगर नई लग रही है क्योंकि क्यू लर्निंग वगैरह हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमने इसे बहुत इजी इजी वे में पढ़ा है, बहुत ऊपर से पढ़, नॉट वेरी डिटेल बट इनफ डिटेल्ड वे में पढ़ा है, ऊपर ऊपर से भी नहीं बट इनफ डिटेल कि हम लिख सके आकर, वी नो द बेसिक्स। हमने इसके बेसिक्स अच्छे से पढ़े हैं, और अगर हम इसको दोबारा दोबारा 2-3 बार पढ़ लें तो आई थिंक वी कैन, अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो वी विल रिमेम्बर दिस थिंग्स। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।